नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के 5 अलग अलग मेथड्स या यूँ कहें कि लाइन के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हमें दी हों तो 5 अलग अलग तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, जिसमें पहली जो है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मीन्स if we are given slope and a point on the line, then equation of line will be y minus y1 is equal to slope x minus x1, where x1 y1 is the given point and m is the given slope of the line. Second is 2-point form. 2-point form. If we are provided with the 2 points on a straight line, then the equation of line can be written as y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. We know that slope of any line, if 2 points on the line are given, then slope of line is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Means both these forms are same, only here we use directly slope of the line, whereas in the second case slope of line is also calculated. Third is slope intercept form. Slope intercept form, and it is equal to y is equal to mx plus c, where m is the slope of line and c is y intercept of the line. When we talk of intercept, means distance of the point where any line crosses a axis. For example, this straight line crosses y-axis at this point, say A, and x-axis at this point B. Then this distance is called y-intercept, and this distance is called x-intercept. Generally, we denote x-intercept by A and y-intercept by B. But here we have written y-intercept by C. Generally convention है y is equal to mx plus c, ऐसे लिखा जाता है. Means intercept दरअसल एक्चुअली में तो complete point होता है. ये जो फॉर्म है ये 2 point फॉर्म से ही आपकी निकलेगी. How? If this distance is A, then this distance point B will be minus A0. And if this distance is B, means y-intercept is B, then this point will be 0, B. So we have 2 points on the line, minus A0 and 0B, and using 2-point form we can write the equation of the line. But for simplicity and for saving time, we can write directly equation of the straight line using only intercepts. That is called intercept form of line, and it will be equal to x over A plus y over B is equal to 1, where A is x-intercept, B is y-intercept. If any line crosses axis like this, then this distance is x-intercept and this distance will be y-intercept. Means कि यदि हमें इंटरसेप्ट्स दिए हों तो फिर हालांकि ये अभी बताया कि इंटरसेप्ट मीन्स पॉइंट, कंप्लीट पॉइंट. दिस इंटरसेप्ट इज ए, सो पॉइंट इज A0. दिस इंटरसेप्ट इज B, so this point is 0B. means there are 2 points on the line and equation of line can be written using second form also.
but for saving time, directly x over a plus y over b is equal to 1 will be the equation of the straight line if both intercepts are given. And last is perpendicular form. Perpendicular form. In this form, it is given that the given line is at a perpendicular distance of p from origin. Distance of the line from origin is given, and say it is, let it is equal to p, and the perpendicular drawn from origin to the line makes an angle alpha with x positive direction of x axis. जो परपेंडिकुलर है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ और उसकी डिस्टेंस या यूं कहे कि उसकी लेंथ यदि आपके पास हो, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी. तो ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के. इन पे बेस्ड एक्सरसाइज है 10.2. इसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे, कुछ आज करेंगे. तो क्वेश्चन को हम पहले रीड करेंगे, रीडिंग के बाद हम ये देखेंगे कि वेदर वी आर गिवन स्लोप पॉइंट और 2 पॉइंट और स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. क्वेश्चन 9th, vertices of a triangle PQR are this. Let this is the triangle PQR with coordinates 2 1, Q minus 2 3 and R 4 5. Find the equation of the median through R. Median माध्यिका जिसको बोलते हैं. There are 3 medians in a triangle. If midpoint of a side is joined with the opposite vertex, then it is called median. So this point, say M, is midpoint of PQ. We are to write equation of MR. तो अब हमें देखना है कि स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट, स्लोप इंटर कौन सी फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ MR जो है वो लिख पाएंगे. तो एक पॉइंट तो क्लियरली है, जो लाइन है MR, जो मीडियन है, ये मीडियन थ्रू R, ये लिखा हुआ है मीडियन थ्रू R. मीडियन थ्रू Q जो है इस तरह से इसके मिड पॉइंट को Q से मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड मीडियन थ्रू Q. बट वी आर टू राइट इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R. तो R को हमने अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट से ये ज्वाइन किया हुआ है. तो इक्वेशन ऑफ आर एम जो है लिखनी है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट तो हमारा आर हो जाता है. इसके साथ साथ सेकंड क्या होगा कि पॉइंट एम जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट एम बी मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम will be, M is midpoint, so midpoint formula x1 plus x2 by 2. So 2 plus 2 means 2 minus 2 by 2, and 1 plus 3 by 2 means 0 by 2, and 4 by 2, that is it will be equal to 0 and 2. So coordinates of M will be 0, 2. So equation of MR, equation of line MR, line passing through लिख लें. Equation of line passing through MR, passing through M and R 4 by, so 2 points, there are 2 points on the line, so using 2-point form, y minus y1 and y1, say this is x1 y1, and we can say this point R, coordinates of point R, x2 y2. We can also use this point as x1 y1 and this as x2 y2. उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा.
तो y माइनस y1 मीन्स 2 इज इक्वल टू y2, फिर ये हो जाएगा, यदि आप इसको x1 y1 लें तो नेचुरली इट विल बी x2 y2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y1 हमने 2 लिया है तो x1 विल बी 0, so y minus 2 is equal to 3 by 4 into x. 4 multiplying on to the left hand side, 4 into y, 4y into 8 is equal to 3x. Transposing 4y and 8 to the side of 3x, so 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 will be the final equation of मीडियन थ्रू आर। तो ये हमारा क्वेश्चन था 9th। 10th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो यहाँ पे के बाद फिर हमें थोड़ा इससे पहले जो हमने किया था 10.1 में कि स्लोप ऑफ ए लाइन हम कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन ये लिखा हुआ है y2, यानी कि 2 पॉइंट यदि लाइन पे दिए हों तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसके साथ साथ हमने किया था कि यदि पैरेलल लाइंस हैं इट मींस स्लोप्स ऑफ द लाइंस विल बी इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। और हमने परपेंडिकुलर लाइंस भी किया था, परपेंडिकुलर लाइंस इफ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। तो इन क्वेश्चंस में पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, थोड़ा सा हम इसको भी यूज करेंगे। जैसे 10th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो लाइन पे एक पॉइंट तो हो गया जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद कहता है परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 2, 5 और एक पॉइंट है -3, 6। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन क्रॉस करती है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन, और वो लाइन -3, 5 से क्रॉस करेगी। तो इसकी इक्वेशन हमें लिखनी, ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन लिखनी, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारे पास हो ही गया लाइन का, गिवन है ये, तो हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलरिटी से। कैसे हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, so slope of line can be calculated by y2 minus y1. Slope of line passing through let us say A 2, 5 and B -3, 6 will be, say it is m, it will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is 1 by -5। सो स्लोप, ये तो लाइन के ए बी का स्लोप है, ये तो यदि हम इनको नाम दे दें ए बी। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जिस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है उसका स्लोप, तो m1 m2 -1 होना चाहिए। तो इसमें किसी का भी स्लोप निकालना उसे m1 विल बी इक्वल टू -1 बाई m2। मीन्स परपेंडिकुलर लाइन में एक का स्लोप हमारे पास हो तो दूसरी का स्लोप नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। तो इसका स्लोप 1 बाई -5 है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी, m हमने यहाँ यूज कर लिया तो आप यहाँ कोई और नाम रख सकते हैं m1, इट विल बी नेगेटिव ऑफ m, यानी कि -1 बाई m, दैट इज -1 बाई 1 बाई -5। तो -5 ऊपर चला जाएगा और कुल मिला के ओवरऑल माइनस से माइनस कैंसिल होके 5। मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 5 एंड -3, 5 lies on the line. So slope point form can be used to write the equation of this line. So equation of line passing through
passing through -3 5 and having slope 5 will be y minus y1 y1 is equal to m means 5, x minus x1 minus 3 means plus 3. So y minus 5 is equal to 5x plus 15. तो y और 5 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 5x माइनस वाई प्लस 5, तो ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बीच में आप इसको थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। वो कैसे हो सकता है कि ये पॉइंट इस पे लाई करना चाहिए, मीन्स x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 5, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लेते हैं, x इज -3 तो -15, y इज 5 तो -15 माइनस 5 -20 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 0, मीन्स कि ये इक्वेशन जो है वो सही है। तो इसी तरह का 11th क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, उसमें भी पॉइंट और स्लोप हमारे पास है और स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हम लगा के इक्वेशन लिख सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन इसमें बड़े अच्छे दिए हुए हैं और ये दोनों हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के, उनमें इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 12th और 13th। 12th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, कि जो एक्सिस पे जो उसके इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल हैं एंड पासिंग थ्रू 2 3, और वो 2 3 से जो है वो पास करती है। तो बड़ा इजी है ये जो 2 3 है ये आपका जो इंटरसेप्ट है वो कैलकुलेट करने के काम आएगा। कैसे कि लेट लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ए, तो दोनों जो इंटरसेप्ट हैं क्योंकि इक्वल हैं तो ए और बी अलग अलग, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, दोनों इक्वल हैं तो हमने ए एज्यूम कर लिया, दोनों को हम बी या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, क्योंकि हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट हैं तो फिर हम ये सारी फॉर्म में छोड़ के, क्योंकि ये इजी है तो सीधा ये यूज करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी एक्स ओवर ए प्लस y ओवर b एंड b इज आल्सो a इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अभी इस इक्वेशन में a की वैल्यू जो है ये तो ये रखनी है हमें, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया है इंटरसेप्ट a, एक्चुअल में कितना है ये कौन बताएगा कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट जो है ये इससे क्रॉस करती है, तो इस पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आल्सो पॉइंट 2 3 लाइज ऑन दिस लाइन, जो पॉइंट 2 3 है इस लाइन पे लाई करता है, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे जो पड़ेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स जहां x है वहां पुट कर देंगे 2, तो 2 बाई ए एंड y इज 3 बाई ए इज इक्वल टू 1, एलसीएम a लेके जोड़ेंगे तो 5 बाई ए इज इक्वल टू 1, so a is equal to 5, means this a will be 5, तो putting value of a in 1, x over 5 plus y over 5 is equal to 1 will be the required equation। लेकिन जो फाइनल इक्वेशन है वो हम बार बार कह रहे हैं कि जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में लिखनी है। तो इसलिए आप इधर 5 एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और ये 5 फिर उधर चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यदि हम 5 को इधर लिख दें तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म थी जिसमें ये दिया हुआ था कि इक्वल इंटरसेप्ट जो है दोनों हैं और एक पॉइंट दिया था। सेम वे है 13th, उसमें क्या है इंटरसेप्ट्स हुज सम इज 9, कि दोनों इंटरसेप्ट्स का जो सम है ए और बी का वो 9 है, एंड पासिंग थ्रू 2 2, और वो 2 2 से जो है वो क्रॉस करती है। तो इसमें क्या करेंगे कि लेट लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट
तो एक इंटरसेप्ट मान लिया कि A है, देन अनदर विल बी कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स A and 9 minus A, so that sum of both is equal to 9। तो एक इंटरसेप्ट हमने A ले लिया, दूसरा अपने आप ही 9 माइनस A हो जाएगा। या आप अलग अलग एज्यूम कर लें कि एक A है एक B है, जो जनरली होता ही है। देन A प्लस B शुड बी 9, सो B विल बी 9 माइनस A। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन तो हम सीधा एज्यूम कर लेते हैं कि जो इंटरसेप्ट्स हैं वो एक A है और दूसरा जो है वो 9 माइनस A है। अब क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास हैं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन की। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x over A plus y over B and B is 9 minus A is equal to 1। तो इसमें भी हमें A कैलकुलेट करना है और A कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है कि लाइन passes through 2 2। This line, or we can say that point 2 2 lies on line 1, so it must satisfy the equation of the line। So putting x is equal to 2 by A plus y is also 2 by 9 minus A is equal to 1। Taking LCM A and 9 minus A cancels, 9 minus A multiplied with 2, so 2 into 9 minus A plus 9 minus A cancels and A into 2, 2A is equal to 1। This means 2 into 9 18 minus 2 into A 2A plus 2A divided by 9A minus A square is equal to 1। Cross multiplying 9A 2A cancels, so 18 is equal to 9A minus A square। इन दोनों टर्म्स को 18 की ओर कर लें, सो इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9A माइनस और 18 प्लस इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है A में आ गई, मीन्स A की दो वैल्यू पॉसिबल हैं ये। तो इसका फैक्टर करके, गुणनखंड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 है, ये 18 है, तो 6 and 3, so factors will be A minus 6, A minus 3 is equal to 0, and so either A minus 6 is 0 or A minus 3 is 0। This means A is equal to 6 or A is equal to 3। A 6 हो सकता है या 3 हो सकता है जी। तो अब हम यहाँ आएंगे, हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है कंप्लीट। If A is 6, then another 9 minus A will be 3, and equation of line will be x over A means x by 6 plus y by 3 is equal to 1। तो ये हमारा आंसर होगा, लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कर देंगे 6 एलसीएम लेके x एज इट इज 3 into 2 2y इज इक्वल टू 1, 6x plus 2y इज इक्वल टू 6, और इधर लिखेंगे तो -6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस है। इसमें आपका सेकंड केस भी बन जाएगा कि इफ A is 3 then 9 minus A will be equal to 9 minus 3 means 6। So equation of line will be x over A means x by 3 plus y by 6 is equal to 1। Again LCM will be 6, 3 into 2 2x plus y is equal to 1, और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x plus y is equal to 6। तो ये भी इक्वेशन, यानी कि दोनों जो लाइंस हैं
इन दोनों लाइंस में क्या होगा कि इनके इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो तो 9 आएगा और दोनों ही 2 से जो है वो क्रॉस करेंगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा सम है इस एक्सरसाइज का, जो कई बार आया है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन था कि दोनों इंटरसेप्ट्स का आपको सम दिया हुआ है तो एक को मान ले और दूसरा उसके हिसाब से लिख के सोल्व कर देंगे। लास्ट है आज के लिए 14वां क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3। तो क्या हुआ, लाइन के बारे में हमारे पास एक तो पॉइंट हो गया और एंगल दिया हुआ है, तो जो स्लोप होता है लाइन का या तो इससे निकाल सकते हैं या स्लोप जो है लाइन का वो टेंजेंट थीटा भी होता है। कि यदि हमें थीटा दिया हो, थीटा मींस एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो दिया हो तो यहाँ दिया है 2π/3, तो टेंजेंट थीटा से भी स्लोप आ सकता है और उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हो तो इससे भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वो एंगल दिया है तो स्लोप हम यहाँ से निकाल देंगे और पॉइंट जो है वो लाइन पे दिया हुआ है 0 2, पॉइंट ऑन द लाइन 0 2 and slope of line generally denoted by m will be tangent theta, theta is 2π/3, 2π/3 ग्रेटर देन 90 का एंगल है। तो इसको आप कैलकुलेट जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है कि 2π/3 को हम लिखेंगे पाई माइनस π/3। अब एलसीएम इनका 3 आ जाएगा तो 3π माइनस पाई मीन्स 2π, यानी कि ये सेम है। लेकिन हमें पता ही है अलाइड एंगल फार्मूले हमने किए हैं कि पाई को आप छोड़ सकते हैं, पाई से नाम चेंज नहीं होगा तो इसका नाम पाई टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट π/3। बट पाई माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें टेंजेंट नेगेटिव होता है। वैसे भी 2π/3 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और उसमें टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और टेंजेंट π/3 होता है √3। तो मीन्स स्लोप ऑफ लाइन इज -√3, पॉइंट ऑन द लाइन इज दिस। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक पॉइंट हो गया और स्लोप हो गया और स्लोप पॉइंट फॉर्म हमें पता ही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 2 इज इक्वल टू m माइनस √3 और x माइनस 0। सो y माइनस 2 माइनस √3x, माइनस √3x को हम इधर ले आए तो माइनस √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। कि जो लाइन उसने पूछी थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड मेकिंग एंगल दिस, तो ये आंसर। इसी में थोड़ा और इसने ऐड किया है, आल्सो फाइंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट, equation of a line parallel to it, parallel lines have same slopes, so slope of the required line is equal to slope of this line and slope of this line is minus √3। तो जो सेकंड लाइन लिखी जाएगी उसका जो स्लोप है वो भी यही आएगा फिर, क्योंकि वो भी लाइन पैरेलल है। सो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 कह लेते हैं हम इसको, नंबर 1 देके, is equal to same parallel है, parallel to this line, parallel lines have same slopes because slope of this is minus √3, so required lines will have slope minus √3 and point on the line means line crosses y-axis at a distance of 2 units below origin। तो यदि ये आपके एक्सिस हैं तो ये ओरिजिन है, इससे नीचे 2 जो 2 यूनिट्स है वहां से लाइन क्रॉस होती है, तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज 0 - 2 मीन्स लाइन पासिस थ्रू 0 - 2, तो पॉइंट हो जाएगा बिकॉज लाइन क्रॉसेस y एक्सिस at a distance 2 units below origin, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, दिस मीन्स पॉइंट 0 - 2 लाइज ऑन द लाइन
रिक्वायर्ड लाइन कह सकते हैं आपकी, जो लाइन वो पूछता है। एक लाइन का तो इक्वेशन हम पहले से लिख चुके हैं, अब ये अनदर लाइन है, कोई दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन लिखनी है, इसके पैरेलल होनी चाहिए और यहां से वो गुजरनी चाहिए। तो यहां भी हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा सेम और पॉइंट जो है वो डिफरेंट हुआ। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो ये जो लाइन होगी, तो यहां भी हमारे पास वही हुआ, स्लोप हुआ और पॉइंट हुआ, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1, y1 इज -2, सो y प्लस 2 इज इक्वल टू स्लोप into x minus x1 and x1 is 0. So y plus 2 is minus root 3x, minus root 3x को इधर ले आएंगे तो plus root 3x plus y plus 2 is equal to 0. तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस में केवल कांस्टेंट का ही फर्क होता है, बाकी x और y के जो कोफिशिएंट्स है वो तो हमेशा सेम होते हैं, ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है। तो बाकी आगे की एक्सरसाइज में जो आगे डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।